कर्नाटक में कई दिनों से जारी सियासी बहरान के बीच आज 2 आजाद एमएलएज ने हुकूमत से हिमायत वापसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर को लिखे खत में आजाद एमएलएज एच नागेश और आर शंकर ने हुकूमत पर कई इल्जामात भी लगाए। हालांकि कांग्रेस ने किसी तरह के खतरे से साफ इनकार किया है। उधर मौजूदा सियासी बहरान के बावजूद सीएम कुमारस्वामी बिल्कुल आजाद नजर आए। उनका कहना है कि ऐसी खबरों को कई दिनों से वो एंजॉय कर रहे हैं और अगर 118 अरकान की हिमायत वाली हुकूमत से 2 एमएलएज चले ही गए तो उनकी हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। Whatever news you wanted to create, you can create. You are free to that. Sir, but they have given the letter. Let's see what will going to happen. If 2 MLAs, independent MLAs, withdraw the support, what will be the numbers? One seems to be the most relaxed. I am totally relaxed. I know what is my in our Kannada channels going on from last 1 week. I am enjoying it. Sir, what about the legislators in Mumbai? They are in touch with me. Why do you worry? We have been saying Bharatiya Janata Party is luring our MLAs with the money, with the power, on all kinds of things. So definitely, they are trying their best to topple this government, which they are not going to be successful. They can't dislodge this government. They are in illusion. The BJP people are always after power. They are not respecting constitution. They don't have belief in the democracy. They are always, trying to topple the government. They wanted the power. Mr. Yediyurappa wanted to become a chief minister before this parliament election. It is going to be a dream. It is not possible. Sir, but you have targeted the Prime Minister directly, sir. They are trying. They have tried already. Some of our Shivalli they have tried. Anil, they have tried. See, they have tried some people, but they have failed. They are offering huge money. 2 आजाद एमएलएज की हिमायत वापसी और कई एमएलएज के मुंबई में होने की खबर के बाद कांग्रेस ने हंगामी मीटिंग बुलाई। इस मौके पर पार्टी लीडरान ने कुमारस्वामी हुकूमत पर किसी तरह के खतरे से साफ तौर पर इनकार कर दिया। कुछ लीडर्स का तो यहां तक कहना है कि बीजेपी लगातार उनके अरकान को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। वहीं रियासती वजीर ने भी इसी तरह की बात कही है और उनका ये कहना है, जमीर अहमद खान ने कहा है कि बीजेपी ने अगर ऐसी गलती की तो उसके कई गुना अरकान से उन्हें हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी अरकान उनके राब्ते में है। वाज़ेह रहे कि 224 अराकीन वाली रियासती असेंबली में कांग्रेस के 80, जेडीएस के 37 के अलावा बीएसपी के 1 एमएलए की हिमायत अब भी हासिल है। हालांकि कांग्रेस के कई एमएलएज के मुंबई होने की खबर पर उनके बगावत की बात शुरू हो गई है। Came in front of any BJP leaders. I had not came with any BJP leaders or something. Unnecessary media is hyping. Anand Singh is not with party. He's gone for Bombay. He's gone for Delhi. I'm here only. So there's nobody that is even trying to contact you? See, that is not you. My answer. See, I had not identified with any other party people. I'm with, but that is the meaning. It is I'm with party only, no? मेरे को पता नहीं यार कौन कहाँ पे है, कौन कहाँ पे आएगा, वो मेरे को क्या पता है। I am as an ordinary MLA and party worker. That's all. You as an ordinary MLA and party worker, like you're mentioning, you're here from morning having a meeting with senior Congress leaders. What is the reason? Just I was sitting outside the room. Okay. Government will be stable. It will be for 5 years under the leadership of Mr. Kumaraswamy. No Sankranti Sankat, nothing will happen. BJP's duty is their duty. Why should we worry about their? We are worried about the problems of the people of Karnataka. We are worried about the problem of people of Karnataka. This is all confusion creating. They are not happy. They are very unhappy with the national level politics, which all the BSP, the SP tied together. They are frustrated. They are trying to do some havoc.
Nothing is there. We don't want to involve with their politics. We are only interested in our the people of our state and our government. All MLAs are in touch with our party leader Siddaramaiah, including myself. Nobody will go to BJP. Our government, this coalition government, we have formed. The mandate is going to be for 5 years and will complete 5 years, full years. Congress do not believe in Operation Kamala, Operation Congress, Operation JDS. We don't believe in this operation at all. So, on their own, if their MLAs dissatisfied with the BJP for what they are doing, if they come to us and talk to us, this is no horse trading, I'm clarifying. ये वेणुगोपाल आज आने का नहीं था, एडवांस में पहले से प्रोग्राम फिक्स था 15 तारीख को आने का और 18 तारीख को आने का। ये नया कुछ नहीं, हमारा कुछ पार्टी का डिस्कशन था, वो डिस्कशन के बारे में चला है। ऐसा कोई फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सच है कि आपके 3 विधायक बीजेपी के साथ अभी भी टच में हैं और वो 10 में बदलेगा, 11 में बदलेगा कल? नहीं, ऐसा पूरा खाली रूमर्स है, वो ऐसा कोई नहीं है 4-5 आदमी बॉम्बे में है, नहीं करके नहीं। अभी बॉम्बे में कोई हॉलीडे में जाना करके नहीं है, अभी उनके कुछ पर्सनल काम से भी गए होंगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। खाली एमएलए हो, 4-5 एमएलए है, मानता हूं मैं, बीजेपी में है, नहीं करके नहीं। और बीजेपी वाले लगातार कोशिश कर रहे, आज से नहीं, जिस दिन से हमारी पहला दिन जो गवर्नमेंट बनी उसी दिन से गवर्नमेंट गिराने के वो लोग चक्कर में है। मैं उसके लिए मना नहीं करता, सुनो, मगर इतना नहीं, अभी बीजेपी वाले क्यों दिल्ली में हमको क्या मालूम। अभी हमारी पार्टी के एमएलए 3-4 एमएलए उधर है, उनको नंबर किसी हालत में नहीं होएगा। हम भी हाथ बन के बैठेंगे नहीं, अगर वो कुछ ऐसा करेंगे तो हम लोग भी बैठने वाले नहीं है। हमको भी बीजेपी के एमएलए थोड़े जन टच है हमारे से भी, वो लोग भी है 4-5 आदमी हमारे से बात किए, टच में है। अगर बीजेपी वाले हाथ डालेंगे तो हम ऐसे थोड़े हाथ बन के बैठेंगे हम। तो दोनों ही पार्टीज दावा कर रही हैं कि उनके एमएलएज एक दूसरे के राब्ते में हैं। कोई कह रहा है कि हमारे राब्ते में 5 हैं एमएलएज, कोई कह रहा है हमारे राब्ते में 5 एमएलएज हैं। कुछ एमएलएज कांग्रेस के मुंबई में हैं तो बीजेपी के दिल्ली में हैं। तो बहुत ही अजीब से हालात फिलहाल कर्नाटक के बने हुए हैं। सीधे रुख करेंगे मुंबई से का, जहां से हमारे नुमाइंदे राकेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, मुझे बताइए कि बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 5 एमएलएज दरअसल कर्नाटक में हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एक साथ उन 5 को काम पड़ गया, घूमने चले गए, हॉलिडे पर चले गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक साथ 5 को ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, जो जानकारी हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक कुल 6 एमएलए जो हैं वो यहाँ इस वक्त मुंबई में हैं। इनमें से 4 एमएलए जो हैं ये कांग्रेस पार्टी के हैं और 2 जो हैं वो निर्दलीय हैं। ये दोनों ने ही अपना जो सपोर्ट है वो विड्रॉ कर लिया है। ऑफिशियली उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, एक लेटर उन्होंने जो है गवर्नर के लिए लिख दिया है। ये दोनों ही जो निर्दलीय एमएलए हैं ये कल मुंबई से बेंगलोर के लिए रवाना होंगे और ये बताया जाएगा कि उनकी वहाँ पर जो है मुलाकात गवर्नर से होनी है, ताकि वो ये जो है मिलकर के इन पर्सन भी उनको बता सके कि हमें सपोर्ट विड्रॉ करना है। दूसरी तरफ जो 4 एमएलए हैं यहाँ पर कांग्रेस के, मुंबई के एक 5 सितारा होटल में, एक 5 स्टार होटल है वहाँ पर हैं। तो इसमें से एक एमएलए का कहना है कि वो अपने बेटी की शादी का जो है मैरिज इनविटेशन कार्ड देने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन बाकी 3 जो है क्या वो भी कोइंसिडेंस से यहाँ पर आए हैं या नहीं आए, ये एक अपने आप में एक सवाल है। दूसरी तरफ जो है बात ये भी है कि यहाँ पर हमने देखा कि कुछ जो बीजेपी के कुछ यहाँ के जो लोकल नेता हैं मुंबई में, वो भी यहाँ पर इस होटल के यहाँ मौजूद हैं। मुंबई कांग्रेस के जो यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता है वो भी होटल के भीतर मौजूद हैं। पुलिस की टीम भी जो है भीतर होटल के अंदर मौजूद है। होटल में सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी बढ़ा दी गई। तो कुल मिलाकर के एक बैटल ग्राउंड जो है ये होटल बन गया, ऐसा लगता है, जहाँ पर 4 जो कांग्रेस के जो नुमाइंदे हैं, एमएलए हैं कर्नाटक से, कहीं ना कहीं उनके ऊपर सबकी निगरानी है, सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर जो है ये कब क्या मोड़ लेते हैं, किस पक्ष में जाते हैं नहीं जाते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने हमारे दर्शकों को सुनाया कि किस तरीके से दोनों ही पार्टियां जो है इन पर अपना अपना दावा कर रही हैं। लेकिन ये जो 4 एमएलए यहाँ पर हैं ये अभी फिलहाल अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं, किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। इसके बीच में एक बड़ी अपडेट ये भी आई है कि कर्नाटक के जो एक मिनिस्टर हैं डीके शिवकुमार, ये आज मुंबई आने वाले थे और उनकी मीटिंग यहाँ पर इन एमएलए के साथ होने वाली थी। डीके शिवकुमार के लिए कहा जाता है कि ये अपने आप में बहुत ही वजनदार नेता हैं जिनके हाथ में काफी कुछ कंट्रोल था। लेकिन अब ताजा अपडेट आई है कि
उन्होंने अपना महाराष्ट्र का जो दौरा है वो उसे रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया, अब वे मुंबई नहीं आ गए। ऐसे में जो हलचल है वो अब और ज्यादा बढ़ गई है। जाहिर सी बात है। और डीके शिव कुमार वो एक ऐसे शख्स हैं जो स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं और यही माना गया था कि जो जेडीएस और कांग्रेस का फिलहाल जिस तरह से पूरा इत्तेहाद हुआ था उसमें उनका बहुत अहम रोल था और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अहम रोल निभाया। किस तरह से तमाम एमएलएस को उन्होंने बांध कर रखा, कहीं जाने नहीं दिया, इसके लिए भी वो जाने जाते हैं। तो ये कह सकते हैं फिलहाल कि राकेश की जो होटल्स और रिजॉर्ट की जो सियासत है जो दरअसल कर्नाटक की मानी जाती है वो एक बार फिर से चल पड़ी है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि बीएस येदियुरप्पा जो हैं वो दिल्ली में पहुंचने वाले हैं। उनके बीजेपी के कुछ एमएलएस भी हैं और वो भी ये दावा कर रहे हैं कि उनके एमएलएस को खरीदने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस भी यही दावा कर रही है। तो लग रहा है कि अभी कर्नाटक की सियासत इसी तरह से गरमाई रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सियासत जो है वहां पर गरमाई रहेगी और फिलहाल जो दो निर्दलीय विधायकों ने अपना सपोर्ट वापस से लिया है कांग्रेस जेडीएस गवर्नमेंट से, इससे अभी फिलहाल तो जो है एक बड़ा खतरा नहीं बना हुआ है जो कर्नाटक की सरकार को, लेकिन उनको एक झटका जरूर लगा है, ये कहा जा सकता है। ऐसे में अगर आने वाले वक्त में अगर जो 4 कांग्रेस के एमएलए अगर जो मुंबई में इस वक्त यहाँ पर एक रिजॉर्ट, एक 5 स्टार होटल में बैठे हैं, अगर ये भी उनका साथ छोड़ देते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी एक बड़ा बयान दिया है कि अगर बीजेपी ने हमारे 4 एमएलए को अगर ले लिया तो हम भी उनके 6 एमएलए को लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो अपने आप में जो है ये खुलकर जब दावा होगा, अब तक जो खरीद फरोख्त की बात होती थी या हॉर्स ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल भाषा में, इसकी बात होती थी, कहीं ना कहीं वो राजनीति जो है अब वो दोनों ही पार्टियों की तरफ से दिखाई दे गई है। और ऐसे में जहां पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि कांग्रेस के मुंबई के जो कार्यकर्ता है वो भी और मुंबई बीजेपी के भी दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो होटल के भीतर मौजूद हैं और वो इसी फिराक में है कि कब उन्हें जो है ये चारों कांग्रेस के एमएलए दिख जाए और ये लोग अपनी बातें उनको बता करके उनका जो रुख है इस मामले में वो साफ साफ पता कर सकें। तो फिलहाल बहुत ही असमंजस की यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई, जिसको क्लैरिफाई करने की कोशिश हर पार्टी के हर नेता कर रहे हैं। चुपचाप बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और ये लोग जो है बिल्कुल ही चुपचाप तरीके से अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर निभाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे गए। बिल्कुल। और राकेश ये भी लग रहा है क्योंकि ये माना जाता है कि जिसकी स्टेट में हुकूमत होती है लोकसभा इलेक्शन में उसी पार्टी को ज्यादा फायदा मिलता है और कर्नाटक की हुकूमत तो अभी कुछ दिन पुरानी ही है। ऐसे में लग ही रहा है कि बीजेपी भी इस फिराक में है कि जो उसे नुकसान राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या यूपी, बिहार में उसे होने जा रहा है लोकसभा इंतखाबात में, उसकी भरपाई वो इधर तमाम स्टेट से कर ले। और यही वजह है कि वो लगातार ये फिराक में लगी हुई है कि किस तरह से फिर से वो वहां पर हुकूमत बना ले। और यही वजह है कि ये तमाम हॉर्स ट्रेडिंग बोल लें, जोड़ तोड़ देख लें, रिजिग्नेशन देख लें, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। निश्चित तौर पर देखिए अगर ये सरकार टूट अगर जाती है तो लोगों की तरफ जो है एक मैसेज ये जाएगा कि अभी अभी कांग्रेस पार्टी जिसने 3 राज्यों में अपनी हुकूमत बनाई वो ही कांग्रेस पार्टी जो है कर्नाटक में अपनी सरकार को बचाने में नाकाम रही। और खास तौर से 2019 के जब चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में ये जो इंटरप्रिटेशन है ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा जो है काफी कुछ तय करने वाला इसको माना जा सकता है। यही वजह है कि जो इसकी टाइमिंग है इस पूरी कवायद की, ये जो भूचाल आया हुआ है कर्नाटक की पॉलिटिक्स में, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ऐसे में चाहे वो बीजेपी के एमएलए जो है वो दिल्ली चले जाएं, गुड़गांव में चले जाएं या फिर कांग्रेस के एमएलए मुंबई आ जाएं, इससे ही पता चलता है कि आखिर जो है कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कुछ ना कुछ कहीं पे दाल में काला नजर जरूर आता है यहाँ पर। जी बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दाल में बहुत कुछ काला नजर आ रहा है और फिलहाल दोनों ही पार्टीज ने अपने अपने एमएलएस को बांधने की, या जिस तरह से कर्नाटक की हम बात करते हैं कि वहां पर होटल और रिजॉर्ट की सियासत होती है, उन्हें बांध के रखा जाता है, तो फिर से देखने को एक बार मिल रही है। और उधर बीजेपी के रियासती सदर बीएस येदियुरप्पा कल से ही दिल्ली में मौजूद हैं, जबकि उनके कई अराकीन असेंबली के गुरुग्राम उनको लाया गया है। इस मामले पर येदियुरप्पा ने कहा है कि कांग्रेस उनके एमएलए को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि रियासती हुकूमत अपना एतमाद खो चुकी है। वाज़ेह है कि आज 2 आजाद एमएलए ने रियासती हुकूमत पर कई इल्जामात लगाते हुए हिमायत वापसी का ऐलान कर दिया है। वापसी एच नागेश ने कहा कि उन्होंने इत्तेहाद को बेहतर और मजबूत सरकार देने के लिए हिमायत दी थी, लेकिन इसमें वो नाकाम रही है, जिससे वो बीजेपी को हिमायत करने का फैसला कर रहे हैं। और ऐसे में हम आपको बता दें कि वहीं जो दूसरे एमएलए हैं आज शंकर, उन्होंने कहा है कि आज मकर संक्रांति है और इस मौके पर वो चाहते हैं कि सरकार बदल जाए और रियासत में मजबूत हुकूमत बनाई जाए। My dear friend,
You people are very well known that Ramesh Jarkiwale, after resigned for the cabinet ministership, from the day one is not at all available to anybody. For that we are not responsible. For that Congress or JDS are responsible. Number one. Number two, Kumaraswamy is telling repeatedly even today that BJP is trying his level best to get some MLAs from Congress and JDS. There is no truth at all. Because Kumaraswamy himself is trying his level best to contact our MLAs by offering ministership and also money. That's why 104 MLAs we are together here only. So unnecessarily Kumaraswamy creating problem, and we are not all interested in forming the government at all. Because they are having absolute majority and we are 104, we are sitting in the opposition party. तमिलनाडु बीजेपी रियासती गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित की हिमायत में उतर आई है। पार्टी सदर तमिला साई का कहना है कि गवर्नर को डीएमके कारकुन का ब्लैक फ्लैग दिखाना गलत है। हालांकि इस पर कार्रवाई की बात को उन्होंने रियासती हुकूमत पर डाल दिया। वाज़ेह रहे कि 2 रोज पहले गवर्नर महागिरों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश वो कर रहे थे, जबकि दीगर तकरीबात में जाने पर डीएमके काफी दिनों से उनकी मुखालफत कर रही है, जिससे रियासती बीजेपी गैर कानूनी मानते हुए उनकी नीयत पर सवाल उठा रही है। Already the state government and the chief minister has said they are going to fight legally. So let's try and wait. But another thing I want to mention, wherever our honorable governor went for people's request, he was shown black flag by the DMK. Now he has to answer for that. Why he ill-treated the government, dishonored the governor like that. Let him go. He want to politicize each and everything. The state government and the chief minister has clearly said, we will fight it legally. Let him wait. बेंगलुरु में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने आला जात को 10% रिजर्वेशन देने की मुखालफत कर रही है। इस इशू के खिलाफ मुजाहिरा कर रही तंजीम ने अपर कास्ट के रिजर्वेशन को आइन के खिलाफ बताया। इस मौके पर कहा गया है कि अगर उनकी बातों पर गौर नहीं किया गया तो वो मुल्कगीर मुहिम चलाकर इसकी मुखालफत करेंगे। मोदी सरकार ने जो आखिरी पार्लियामेंट में यह फैसला लिया है कि इकोनॉमिकली वीकर्स के लिए हम रिजर्वेशन 10% देंगे कोटा, वो एकदम एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं, हमने डिसीजन लिया है कि पूरे देश में इसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे और मेमोरेंडम देंगे। नाम के लिए एक माइनॉरिटी अपीजमेंट जो सेकुलर पार्टीज करते थे, तो इसी एक फेस के कारण बीजेपी आकर अपर कास्ट अपीजमेंट कर रही है और ये एक सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक है। पिछले जो इनका टर्म था इसमें इन्होंने कुछ हासिल नहीं किया, जॉब्स नहीं दिए, 100 मतलब 15 लाख का जो अमाउंट आने का था वो भी नहीं आया। काटन मांझा के लिए मशहूर हैदराबाद में ये कारोबार भी चीनी मांझे की वजह से बदहाली के दौर से गुजर रहा है। साल में 6 महीने होने वाला ये कारोबार अब कुछ ही दिनों में खत्म होता जा रहा है, जिससे इस काम में लगे ताजिर और मजदूरों के सामने भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। 50 साल से इस काम में लगे हुसैन का कहना है कि हुकूमत की लापरवाही से चीनी मांझा बाजार में आ रहा है और देसी कारोबार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पूरे मामले पर हुसैन से बात की हमारे नुमाइंदे मीर अली बाकरी ने। आपको उस शख्स से मिलाते हैं जो पिछले 50 साल से कॉटन यानी सूती मांझा की तैयारी करते हैं। आप मुझे बताएं कितने साल से आप ये मांझा तेज कर रहे हैं? 1972 से ये मांझा हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इससे पहले मेरे मामू करते थे, उनका तबीयत खराब होने के बाद, देहांत होने के बाद मैं कर रहा हूँ। सुने आप, तो इससे पहले जो है मेरे पास तकरीबन 14-15 आदमी काम करते थे। अब वो प्लास्टिक का मांझा, जो चाइना का मांझा आने की तरफ से वो 4 आदमी रह गए हैं बस। और हमारा जो 6 महीने कारोबार चलता था वो 6 महीने जाके जो है महीना 15 दिन का रहेगा। ये इसमें मांझा तैयार करने में आप क्या क्या मिलाते हैं उसके अंदर और कितनी देर में ये मांझा तैयार होता है? क्या क्या उसमें मकसद क्या क्या मिलाते हैं आप? हम जो है खाना, कांच, कलर और दूसरे जड़ी बूटियाँ मिलाते हैं और ये सुबह से शाम तक हम मेहनत करते हैं। 3 डजन 4 डजन धागा उतरता है। हर लेबर को जो है 400-500 रुपये मिल जाते हैं। सुने आप, 1 से 4 आदमी काम करते हैं,
सबको जो है अपना अपना पेट भोजन का मसला निकल जाता। तो एक गिट्टी में हो या पर एक आप टोटल एक बार में कितना मांझा निकालते हैं? सुबह से शाम तक 4 डजन 5 डजन निकालते, बस इससे बढ़ के नहीं निकलता। वो भी सुबह 6 बजे 7 बजे से शाम में 6 बजे तक। एक गिट्टी मांझा में कितने मीटर मांझा रहता है? एक गिट्टी मांझे में 50 गज का रहता, मीटर का नहीं है, 50 गज आता। सुने यार, एक तार मांझा होता 50 गज छोटी आधी गिट्टी, और बड़ी गिट्टी अगर लेंगे तो 100 गज का आएगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब से चाइना का माल यहाँ पर आया है, लैंडलॉन का माल यहाँ पर आया है, इनका कारोबार ठप पड़ा हुआ है। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं मेरी मेहदी अली बाकरी, जी मीडिया, हैदराबाद। केलकर कॉलेज मुंबई का तलबा ग्रुप तारीखी जानकारियों की गरज से हैदराबाद के दौरे पर पहुंचा, जहां उन्होंने चार मीनार के अलावा कई तारीखी और मशहूर इमारतों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद में कई रियासतों के तलबा ग्रुप अक्सर यहां पर आते रहते हैं। इस मौके पर ग्रुप ने अपने दौरे को कामयाब बताते हुए खुशी का इजहार किया। मुंबई के केलकर कॉलेज से आए हैं। मुंबई इज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र और यहाँ हैदराबाद हम लोग आईवी के लिए आए हैं। आईवी इज इंडस्ट्रियल विजिट। हम पार्ले जी का फैक्ट्री विजिट किए। इतने सारे बच्चे आप लोग देख सकते हो हमारे साथ आए हैं। देन हुसैन सागर देखा, वो बुद्धा का स्टैचू देखा, रामोजी फिल्म सिटी देख के आए हैं, गोलकोंडा फोर्ट देखा, और हमने इस उर्दू भवन के बारे में भी बहुत सुना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।